آج مولانا فضل الرحمان جو صدر ہیں پی ڈی ایم کے، انہوں نے بھی پریس کانفرنس کی ہے اور جو پی ڈی ایم کی لیڈرشپ اقدامات میں موجود تھی، مولانا صاحب کی ہدایت پر اس کا ایک میٹنگ آج ہوئی ہے اور اس کے بعد یہ چند گزارشات آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو واقعہ پرسوں میں کراچی میں پیش آیا، جس میں آئی جی پولیس سندھ کو اغوا کیا گیا، ان کے ساتھ کیا ہوا یہ وقت بتائے گا، لیکن اس کے نتیجے میں ایک پرچہ درج کرایا گیا، ایک جھوٹا پرچہ، جس کے بعد کیپٹن صفدر صاحب کے ہوٹل کا کمرہ توڑ کر ان کو گرفتار کیا گیا۔ وہ سب چیز ریکارڈ کا حصہ ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اس ملک کے ایک وفاقی ادارے کے اہلکاروں نے آئی جی پولیس کے گھر کا محاصرہ کیا، ایک اور وفاقی ادارے کے اہلکاروں نے آئی جی پولیس کو ساتھ لے گئے۔ جو ان پر بیتی وہ وقت بتائے گا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ وفاق اور صوبے کے درمیان ٹکراؤ ہے۔ یہ آئین کو توڑنے کی بات ہے، یہ ملک کے اندر انتشار پیدا کرنے کی بات ہے۔ ہم سندھ گورنمنٹ کے ساتھ ہیں، اظہار یکجہتی کرتے ہیں۔ سندھ پولیس کے افسران نے جو اصولی سٹینڈ لیا ہے، یہ ان کا حق تھا۔ جو اصولی سٹینڈ لیا ہے، ہم ان سے بھی اظہار یکجہتی کرتے ہیں اور ہمارا احتجاج، پی ڈی ایم کا احتجاج جاری رہے گا۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اگر اس ملک میں آئین کی بالادستی ہوتی تو چاہیے یہ تھا کہ اس ملک کا وزیر اعظم صوبے کے وزیر اعلیٰ کو ٹیلی فون کرتا، ان سے حقیقت جاننے کی کوشش کرتا اور اس کو حل کرتا۔ دونوں وفاقی ادارے، جس میں پاکستان رینجرز ہیں اور انٹر سروس انٹیلیجنس ہے، یہ دونوں ادارے وزیر اعظم کو رپورٹ کرتے ہیں۔ جب وہاں سے کوئی بات نہیں بنی، کوئی کوشش نہیں ہوئی کہ اس معاملے کی تہہ تک پہنچا جائے، تو چیئرمین بلاول صاحب نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے فوج کے سربراہ سے گزارش کی، آئی ایس آئی کے سربراہ سے گزارش کی کہ یہ ملک کے معاملات کہاں پر جا رہے ہیں۔ اس کے بعد جو ہوا وہ راجہ پروفیسر صاحب بتائیں گے، لیکن ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ملک میں آئین کیا کہتا ہے۔ آج اس ملک کے وزیر اعظم نے فوج کو بھی اپنی سیاست میں ملوث کر دیا۔ فوج کا کوئی اثر اس معاملے پر نہیں ہے اور نہ ہونا چاہیے، لیکن آج جو مصالحت کی کوشش ہے وہ چیف آف آرمی سٹاف کر رہے ہیں۔ یہ بدنصیبی ہے کہ آج اس ملک کا وزیر اعظم اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے وفاق کو صوبے سے ٹکرا رہا ہے۔ یہ بڑی تشویشناک بات ہے۔ آج سندھ کا ہر شخص اپنے آپ کو غیر محفوظ محسوس کرتا ہے۔ جس ملک کے پولیس چیف کو اغوا کر لیا جائے رات کے 4 بجے، اس ملک کی عوام کا کیا بنے گا؟ اس ملک کی پولیس کا کیا بنے گا؟ وفاق اور صوبے کے درمیان جو تعلقات ہیں ان کا کیا بنے گا؟ اس بات کے بارے میں سوچا ہے کسی نے؟ اس بات کے بارے میں کسی نے تشویش کا اظہار کیا ہے؟ کیا وزیر اعظم نے کوئی تقریر کی ہے، کوئی بات کی ہے؟ اس کے وزراء جو پریس کانفرنسیں کرتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں، کوئی بولا ہے؟ کیا آپ کو ملک کی پرواہ نہیں ہے؟ کیا آپ کو وفاق کی پرواہ نہیں ہے؟ کیا آپ کو صوبوں کی پرواہ نہیں ہے؟ اور آپ نے پھر فوج کو ملوث کر دیا
پاکستان کی سیاست میں۔ یہ آج ہم سب کی بدنصیبی ہے۔ آج جب ہم سب کو معیشت کی بات کرنی چاہیے، مہنگائی کی بات کرنی چاہیے، بے روزگاری کی بات کرنی چاہیے، عوام کی تکلیف کی بات کرنی چاہیے، ہم صوبے کے آئی جی کو اٹھانے میں مصروف ہیں۔ یا ملک کا وزیر اعظم صوبے کے آئی جی کو اٹھائے گا یا وہ ملک کے معاملات طے کرے گا، یا اس ملک کا وزیر اعظم یہ نظر رکھے گا کہ شہباز شریف کو کھانا کون سا دیا گیا، کرسی دی گئی یا نہیں دی گئی، اس کو پلنگ دیا گیا یا نہیں دیا گیا۔ یہ آج ہمارا ملک کا وزیر اعظم کر رہا ہے۔ اس کو عوام کی پرواہ نہیں ہے۔ اس کو ایک عجیب ذہنی سوچ کے ساتھ، ایک عجیب کیفیت کے ساتھ آج ہمارا ملک ہمکنار ہے کہ ملک کا وزیر اعظم عوام کی تکلیف سے ناآشنا، ملک کے معاملات سے ناآشنا، ملک کی معیشت سے ناآشنا، اس کو صرف ایک انتقام اس کے سر پر چھایا ہوا ہے، جس کو وہ ہر طرح سے کوشش کر کے اپنے مخالفین کو تکلیف پہنچانے کی کوشش میں ہے۔ اس کو یہ پرواہ نہیں ہے کہ آئین کیا کہتا ہے، اس کو یہ پرواہ نہیں ہے کہ وہ ملک کے اداروں کو آج اپنی گھٹیا سیاست میں ملوث کر رہا ہے۔ یہ ملک کی بدنصیبی ہے۔ پی ڈی ایم سے ہم اس سارے معاملے کو کنڈیم کرتے ہیں۔ وفاقی حکومت کے جو معاملات ہیں، جو وفاقی حکومت کی گھٹیا سوچ ہے، گھٹیا حرکتیں ہیں، ان کو ہم کنڈیم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کے عوام کو اور پاکستان کو اس گھٹیا سوچ رکھنے والے لوگوں سے انشاءاللہ نجات ملے گی۔ بھائی صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح کہ عباسی صاحب نے آپ کو بریفنگ دی کہ آج ہماری میٹنگ ہوئی، جو لوگ بھی اسلام آباد میں اویلیبل تھے، جو آپ کے سامنے موجود ہیں پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پر، اور ہمارے پی ڈی ایم کے صدر جناب مولانا فضل الرحمان صاحب کا یہ کہنا تھا کہ یہ ایسا واقعہ ہوا ہے اور اتنا یہ بدنصیبی کی بات ہے کہ اتنا بڑا واقعہ ہو جانے کے بعد وزیر اعظم کی طرف سے، وفاقی حکومت کی طرف سے کوئی بھی ذمہ دارانہ بیان نہیں آیا، بلکہ وہ جلتی پر تل ڈالنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ آپ کے علم میں یہ بات آئی ہے، میں اس کو نہیں دہرانا چاہتا، کہ مریم نواز صاحبہ وہاں پر موجود تھی، ان کے خامند جناب کیپٹن صفدر صاحب کی جس طرح سے ان کا کمرے کا دروازہ توڑا گیا، پھر اریسٹ کیا گیا، پھر آئی جی کے ساتھ جو واقعہ یہ ایک ایسے واقعات ہیں جس پہ بہت ہی غم و غصہ تھا پاکستان کے عوام میں، نہ صرف سندھ کے عوام میں بلکہ تمام لوگوں نے اس کو کنڈیم کیا، پی ڈی ایم نے اس کو کنڈیم کیا۔ اور پاکستان میں ہمارا جو امپورٹنٹ صوبہ ہے، سارے صوبے بہت امپورٹنٹ ہیں، لیکن جہاں پر پی ڈی ایم کی پوری قیادت اس دن موجود تھی، اور وہاں یہ واقعہ پیش آ جانا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اس سے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وفاقی حکومت جان بوجھ کر سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ایسے حالات ملک میں پیدا کر رہی ہے جس سے انتشار پیدا ہو، جس سے قیاس پیدا ہو، جس سے غیر یقینی کی کیفیت ہو اور سارا سسٹم غیر مستحکم ہو جائے۔ یہ بہت افسوس کی بات ہے، بڑے دکھ کی بات ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بڑی دانش کے ساتھ، بڑے صبر کے ساتھ حالات کو سنبھالا دینے کی کوشش کی۔ سندھ کی حکومت نے بڑے صبر اور میں سمجھتا ہوں سمجھداری کا مظاہرہ کیا، اور پھر میں یہ ضرور کہوں گا کہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل باجوہ صاحب نے بڑے احسن طریقے سے جو ہے وہ انٹروینشن کی۔ ہر وقت انہوں نے اس میں جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کو ٹیلی فون پہ بات کی، اور انہوں نے یہ وعدہ کیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم اس کی انکوائری کریں گے، انڈیپینڈنٹ انکوائری کریں گے، اور اگر کسی طرف سے بھی ٹرانسگریشن ہوئی ہے اس کا تعین کیا جائے گا، اور 10 دن کے اندر اندر یہ معاملات ہیں ان کو پوری قوم کے سامنے آ جائے گی یہ انکوائری انڈیپینڈنٹ صاف شفاف ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ہوا کیوں؟ یہ ذمہ داری کس کی تھی؟ یہ ذمہ داری وزیر اعظم کی تھی، جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے یہ بات
वज़ीर आज़म इस पूरे सीन से गायब थे और यूँ वो ये तासुर दे रहे हैं कि उनका तो इसके साथ कोई लेना देना ही नहीं, या दूसरे लफ्ज़ों में ये महसूस हो रहा है कि वज़ीर आज़म की ये ड्यूटी ही नहीं है। उनका एक बड़ा सूबा, एक बहुत इम्पोर्टेंट सूबे में ये वाक़या हो गया, वहाँ की सारी पुलिस जो है वो सरापा एहतजाज बन जाती है और डिमोरलाइज हो रही है और वज़ीर आज़म खामोश, वज़ीर आज़म कुछ भी नहीं कर सक रहे। तो क्या मैं ये कहूँ कि वज़ीर आज़म साहब जो है वो जानबूझकर ऐसे हालात मुल्क में पैदा कर रहे हैं जहाँ पर उनकी हुकूमत नहीं है। सिंध की आवाम ने एक मैंडेट दिया हुआ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत वहाँ पर मेज़बान थी। वहाँ PDM का जलसा हो रहा था और वो जलसा यौम शोदा के जो शोदाए कारसाज की याद में हो रहा था। बहुत बड़ा इवेंट था। मैं समझता हूँ कि इतनी बड़ी तादाद में लोग देखकर वज़ीर आज़म साहब जो है वो झुंझला उठे। वज़ीर आज़म साहब सोचने समझने की जो सलाहियत से उससे महरूम होते जा रहे हैं। क्या ये हो रहा है ये कि आप टेलीविज़न पर 50-60 लोग बैठे हुए, वो सारा दिन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, मैं समझता हूँ एक जिम्मेदार है इंसान की हैसियत से मैं ये बात कर रहा हूँ कि वो हमारे कौमी अदारों को इस सियासत में मुलव्वस कर रहे हैं। उनके स्पोक्समैन को ले लें, उनके मशीरों की फ़ौज को ले लें, उनके वज़ीरों को ले लें, कोई काम उनको नहीं है मां सिवाय कि जो उनकी कुशल कूद जो है वो हम टेलीविज़न के ऊपर देख रहे हैं। तो ये एक बड़ी गैर जिम्मेदाराना रवैया है और इन्हीं रवैयों की वजह से पाकिस्तान का इस्तेहकाम जो है मैं समझता हूँ कि वो मुतज़लज़ल हो रहा है। इन्हीं रवैयों की वजह से, ख़ास तौर पर वज़ीर आज़म के रवैये की वजह से मुझे यूँ महसूस हो रहा है कि जो मुल्क में इस वक्त गैर यकीनी की कैफियत है, जो मुल्क में अफरा तफरी है, जो मुल्क में गरीब परेशान है, जो मुल्क में हर तबका आए फिक्र जो है वो परेशान है और उसको समझने की क्या हो रहा है। इसलिए उनको ये नहीं समझ लग रही कि उनकी वफाकी हुकूमत और उनका वज़ीर आज़म क्या करने जा रहा है। ये बड़ी बदकिस्मती की बात है और आज का ये जो इजलास था इसने मजम्मत की सारे वाक़े की और पाकिस्तान के उस सारे पाकिस्तान के साथ हम ये चाहेंगे कि कभी इस तरह का वाक़या किसी सूबे में नहीं। पाकिस्तान के कौमी अदारों का सबको एहतराम है, हम दिल से एहतराम करते हैं, लेकिन हम ये ज़रूर चाहेंगे कि पाकिस्तान के कौमी अदारों या इंस्टीट्यूशन के दरमियान कोई भी गलतफहमी या किसी किस्म का टकराव जो है वो पाकिस्तान के हक़ में नहीं है, वो पाकिस्तान की सालमियत के ख़िलाफ़ होगा। ये एक बड़ी गैर जिम्मेदाराना बात है। यहाँ वज़ीर आज़म साहब को सामने आकर उनको ये हक़ाइक़ बताने चाहिए थे, लेकिन वो तो छुप कर बैठ गए, ला तल्लक हो चुके हैं। वो कहते हैं मेरा तो उसके साथ कोई तल्लक नहीं है। तो अगर आपका तल्लक नहीं है तो फिर आप कैसे इस मुल्क के वज़ीर आज़म? आपको तो मैं समझता हूँ हंगामी तौर पर जो है वो टेलीविज़न पर आना चाहिए था, आपको खुद वहाँ पर पहुँचना चाहिए था, पुलिस के आपको जो था उनका मोरल उसको हाई करना चाहिए था। जिस तरीके से चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने किया, आपको चीफ मिनिस्टर सिंध को टेलीफोन करना चाहिए था, आपको जो एग्रीड पार्टी है उनसे बात करनी चाहिए थी, आपने IG से आपको बात करनी चाहिए थी। लेकिन ये तो एक तमाशा बना हुआ है और मैं समझता हूँ कि ये हमारा मुल्क जो है उसमें ये जो नई चीज़ें अभी आ रही हैं ये पहले तो कभी नहीं थी। इस तरह ब्लेटेंटली कोई काम नहीं होता। इससे मैं समझता हूँ कि वफाक पाकिस्तान एक वफाक है, हमारी सारी इकाइयाँ जो है वो मिलकर पाकिस्तान बनाती हैं और हम वफाक पर यकीन रखने वाले लोग हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PDM जो है वो वफाक पे यकीन रखते हैं और हमारी सियासत जो है वो वफाकी है। हम इस मुल्क को मजबूत देखना चाहते हैं, इस मुल्क के इदारों को मजबूत देखना चाहते हैं, इस मुल्क के इदारों की इज्जत देखना चाहते हैं। अगर देखिए एक बड़ी सिंपल सी बात है, नो आर्मी नो कंट्री। हर मुल्क में एक फ़ौज होती है, हर इलाके में एक फ़ौज होती है। अगर आपकी अपनी नहीं तो खुदा न खास्ता फिर दुश्मन की होती है। तो हम क्यों कर अपनी फ़ौज के ख़िलाफ़ तो बात कर सकते हैं, हम अपनी फ़ौज से मोहब्बत करते हैं। लेकिन इस तरह जो दूसरे अदारे हैं, पाकिस्तान की जो पुलिस है वो भी बड़ा अहम अदारा है। पाकिस्तान की पुलिस ने लॉ एंड ऑर्डर में बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, दहशतगर्दी के ज़माने में बहुत बड़ी कीमती कुर्बानियाँ हैं, उन्होंने अपने जानों तक के नजराने पेश किए हैं। इसी तरह बाकी जितने महकमे ब्यूरोक्रेसी है दूसरे, इन सबको मिलकर पाकिस्तान बनाना है। हमने नफरतों के बीज तो नहीं डालने हैं वहाँ पर।
हमने तो मुल्क को किसी ऐसी मंजिल की तरफ नहीं लेके जाना है जहां हमें खुद ना पता चले कि हम क्या करने जा रहे हैं। वज़ीर आज़म साहब, हम भी वज़ीर आज़म रहे हैं, इसलिए मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा, आप इस वक्त यू आर एट द हेल्म ऑफ द अफेयर, आपको बहुत सोच सोच कर बात करनी होगी, इन मामलात को आपको देखना होगा। मुखालफिन से देखिए, नफरत फैलाने से नफरत ख़त्म नहीं होगी। आपको एक मुदब्बर सियासतदान की तरह मामलात को देखना चाहिए। आप तो ज़ातियात पर उतर रहे हैं, आप जो मुंह के ऊपर हाथ खेल के जो जेस्चर दे रहे हैं वो किसी वज़ीर आज़म के शायाने शान नहीं है। उससे मुल्क में क्यास होगा, मुल्क में नफरत बढ़ेगी, मुल्क में मनफी रुझान जो है वो जन्म लेंगे और आगे परवान चढ़ेंगे, जिससे हमारे मुल्क की जो है वो सालमियत उसको खतरा है, हमारे मुल्क की तरक्की को खतरा है। आज गरीब जो है वो 2 वक्त की रोटी को तरस रहा है, वो अपने बिजली के बिल नहीं दे सकता, गैस के बिल नहीं सकता, तनख्वाहों में आपने इजाफा नहीं किया। अब हम आ रहे थे तो पार्लियामान के बाहर हमारी माएँ बहनें और बेटियाँ बैठी हुई हैं, ये कितने दिन से बैठी हुई हैं, ये गवर्नमेंट के मुलाजिम कितने दिनों से बैठे हुए हैं, आपने क्या किया? आपके कान पे तो जूं भी नहीं रेंग रही और आप सिर्फ ये कह रहे हैं कि भाई ये जलसे क्यों हो रहे हैं। ये जलसे कोई हमारा कमाल नहीं है जनाब वज़ीर आज़म, ये पाकिस्तान के अवाम तंग आकर सड़कों पर निकल आए और वो मैं समझता हूँ कि आज PDM के प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते हुए PDM की छतरी पे पूरी कौम मुतहद हो चुकी है। आप देखिए तो सही कि आपकी क्या तादाद है और इधर देखिए कितनी तादाद है पाकिस्तान की अवाम की। तो फिर आपका एक वज़ीर आकर कोई मस्करा सा खड़ा होकर टेलीविजन पे क्या कहता है, गुजरांवाला जलसा नाकाम हो गया, वहाँ आप कत्ल की, इक़दाम कत्ल की जो है वो FIRs काट देते हैं पॉलिटिकल वर्कर्स के ऊपर। कल कराची के जलसे को कोई क्या देगा उठ के, नहीं ये तो बंदे ही कोई नहीं थे वहाँ पे। अभी क्वेटा 25 तारीख को जलसा होने जा रहा है। तो ये आप पढ़े नविश्ता है, दीवार पढ़े, दीवार के ऊपर क्या लिखा है? दीवार के ऊपर ये लिखा है कि लोग, पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो अमलन आपकी हुकूमत को मुस्तरद कर चुके हैं, उनके चूल्हे जो हैं वो ठंडे पड़ चुके हैं। गरीब जो है वो आपको बददुआएं दे रहा है, जिसको आपने कहा था कि 1 करोड़ नौकरी दूंगा, 50 लाख घर दूंगा, और अगर आपने ये कहा था अगर किसी चीज़ की कीमत बढ़नी शुरू हो जाए तो आप समझेंगे उस मुल्क का वज़ीर आज़म करप्ट है। मैं इस पर कुछ तबसरा नहीं करूँगा, लेकिन आप खुद गौर फरमाएं कि आपने क्या कहा था, क्या वादे किए थे और आप क्या कर रहे हैं। खुदा के लिए इस मुल्क का हम सबको सोचना है। ये सिर्फ आपका मुल्क नहीं है, ना हमारा सिर्फ ये मुल्क है, ना ये फ़ौज आपकी है, ना सिर्फ हमारी है, हम सारे मुल्क की फ़ौज है, ये पूरे पाकिस्तान का कौमी अदारा है, पुलिस भी हम सब की है। इसलिए मैं आपसे फिर ये गुजारिश करूँगा और PDM को और तमाम दोस्तों को जिन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हज़ार यकजहत किया इस मुश्किल वक्त में, और मैं अप्रिशिएट करूँगा फिर कि जिस तरीके से हुकूमत सिंध ने, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने हालात को संभाला दिया, और पाकिस्तान सिंध पुलिस ने जिस जिम्मेदारी के साथ ये कहा है कि हम छुट्टी पे नहीं जाएंगे, हम अपने इस्तीफे वापस ले रहे हैं, और 10 दिन जो वादा उनसे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने किया, जब वो वादा 10 दिन का है तो हम 10 दिन कोई एक्शन नहीं करेंगे। तो आज हमने भी ये सोचा है कि हम कोई एहतजाज या किसी किस्म का कोई कॉल इसलिए नहीं देंगे कि 10 दिन जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने बड़ी एक जिम्मेदाराना बयान दिया है और बड़ा बर वक्त उनकी इंटरवेंशन हुई है, उसका इंतज़ार किया जाएगा। और कोयटा का जलसा जो है वो 25 तारीख को ऑन है, बाकी तमाम जलसे जो है अपने प्रोग्राम के मुताबिक जारी और सारी रहेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब मीडिया की दोस्तों का शुक्रिया। शॉर्ट नोटिस पे हमारे साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी साहब ने इस्तेक़बाल दिया और आप लोगों ने हाज़िरी दी। उससे पहले 2 साबिक़ वज़ीर आज़म ने आपके सामने बात की, और हालात क्योंकि हमसे ज़्यादा आपको मालूम होते हैं, और आज से कोई ज़्यादा बखबर लोग नहीं हैं, लेकिन हर एक आदमी की अपनी जगह पे थोड़ी सी मजबूरियाँ भी होती है किसी हद तक।
कि वो किस हद तक अपना वो काम उस अंदाज से करवा सकते हैं। मौजूदा सूरत हाल में मुल्क में संगीन बहरान है और ऐसे हालात मेरे ये दो वज़ीर-ए-आज़म सामने खड़े हैं, हैदरी साहब भी बहुत पहले से आ रहे हैं और एक साबिक़ वज़ीर दाखिला भी हमारे साथ खड़े हैं। इस मुल्क की तारीख में कभी भी इस किस्म के वाक़यात रुनुमा नहीं हुए हैं जो इस हुकूमत में। और पहले दिन से जब इलेक्शन में 5-6 दिन के बाद पूरी अपोजिशन बैठी और उन्होंने कौम को बता दिया कि ये जाली हुकूमत है, इस मैंडेट को हम तस्लीम नहीं करते, और हमारे कुछ जो लीडरशिप थी उन्होंने ये भी कहा कि इसमें हलफ भी नहीं लेना चाहिए, और चूंकि अगर हम हलफ लेंगे तो इसके नुकसानात में वो मुल्क का आएंगे। लेकिन बहरहाल हलफ भी लिया और फिर ये भी ख्वाहिश थी सब जमातों की कि उसको कुछ अरसा देना चाहिए कि कल ये न कहें कि हमने अपना वक़्त नहीं जो हमें मिला था, अभी 2 साल से ज़्यादा अरसा हुआ। आप लोग सबसे पहले ये देखें कि कोई एक तामीरी काम पूरे मुल्क में, खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में, पंजाब में, इस्लामाबाद में, सिंध में, आप कोई एक मेगा प्रोजेक्ट हमें बता दें कि इस हुकूमत ने शुरू किया हो। बल्कि हमारी पहली हुकूमत ने जितने काम शुरू किए थे वो भी अभी सारे रुक गए। ये तो मईशत का हाल है जो आपके सामने है। बाकी जो इस किस्म के इक़दामात हैं वो सिर्फ अब पुलिस पे नहीं है। सबसे पहले वो बात आपके सहाफ़ियों पे ज़्यादा हुआ है, और जिस तरह आप लोगों को उठाया गया है मेरे ख्याल में तारीख़ में किसी को भी इस तरह नहीं उठाया है। और इसके बाद फिर अपोजिशन के साथ जो नारवा रवैया रखा गया और जिस तरीके से वहाँ पर उसको तकलीफ़ और अज़ियत पहुँचाई वो भी आपके सामने है। लेकिन कल परसों का जो वाक़या है वो इंतहाई शर्मनाक है, इंतहाई अफसोसनाक है, दर्दनाक है। ये कल्चर ना सिंध का है कि मेहमानों की इस तरह बेइज्जती की जाए, ना खैबर पख्तूनख्वा का है, ना पंजाब का है, और ना कानून हमें इजाज़त देता है चादर चरदीवारी की पामाली का कि एक आदमी अपनी बीवी के साथ कमरे में है और अब इतनी जल्दी में है कि वो आपको कह रहा है कि इतना मुझे वक़्त दे दे कि मैं कपड़े तब्दील करूं, क्योंकि उस वक़्त आराम का टाइम था। लेकिन आप इतना इंतज़ार भी नहीं कर सकते और दरवाज़ा को तोड़ते हैं। और इसके बाद भी मुझे हैरत है कि जो वफाकी वज़रा इसको सपोर्ट कर रहे हैं वो अपने घर के अंदर देखे, अगर उसके घर में कोई आदमी इस तरह दाखिल हो और वो अपने बीवी के साथ हो, अपने बहन के साथ हो, अपनी माँ के साथ हो, तो क्या उस वक़्त भी उसको वो सपोर्ट करेगा? ये वाक़या भी ढकी चुकी बात नहीं है। जो 10 दिन का है वो प्रोसीजर के मामलात हैं। आप सूबे के आईजी पे जब एतमाद नहीं करेंगे, उससे इन्वेस्टिगेशन किसी एजेंसी से करेंगे, तो आईजी पे भी एतमाद ना हो, एडिशनल आईजी पे भी एतमाद ना हो, पूरे सूबे के डीआईजीज पे भी एतमाद ना हो, वहाँ पर जितने डीपीओ है उस पर भी एतमाद ना हो, तो मेरे ख्याल में फिर तो एक ही इदारा और एक ही हुकूमत रह गई जो वो काबिल एतमाद है और बाकी लोग जो हैं वो काबिल एतमाद नहीं है। अभी भी मौलाना फजल रहमान साहब ने मेरे ख्याल में आपके चैनल ने लाइव दिखाया और वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो हम सिर्फ मजम्मत नहीं करते हैं, सिंध की हुकूमत के साथ यकजहती का ज़रूर इजहार करते हैं। उसके साथ भी जो कुछ हुआ, और बिलावल साहब ने कल जो कहा कि मैं इस कौम के सामने और पीडीएम के सामने मुँह दिखाने के काबिल में बहुत बड़ी बात है, वो उसने इकरार किया है। अभी चीफ मिनिस्टर की बात पे भी एतमाद नहीं है, वहाँ पर जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं उसमें भी नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये सूरत हाल सिर्फ सिंध में नहीं है, सिंध में रुनुमा हुआ है, बाकी चारों सूबों में यही हाल है।
اختیار جو ہے وہ میں چونکہ ابھی خیبر پختونخوا میں اپوزیشن لیڈر ہوں، وہاں پر مجھے اپنا وزیر اعلیٰ معلوم ہے کہ میرا وزیر اعلیٰ بیچارہ کتنا با اختیار ہے اور اس کے وزراء جو ہے کتنے با اختیار ہیں. اور وہاں پر جو ایک انفارمیشن کے لیے آدمی بھیجا گیا تھا، آپ کو معلوم ہے، آپ کے ساتھ زیادہ واسطہ ہوتا ہے ان کا. میں لوگوں کے نام اس لیے نہیں لیتا کہ خود بھی عزت کے ساتھ کسی دوسرے کے بارے میں بات کرتا ہوں، اور وہ آپ کے ساتھ لگا ہوا ہے کہ کمیشن مجھے کتنا دیں گے جو میں آپ کو اشتہار دوں گا، اور پھر اس کو صرف ہٹایا جاتا ہے، اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا. وہاں پر آپ دیکھیں کہ بسیں جو ہے زندگی میں آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہو کہ بسیں آگ لگا کے جلتی ہے، اور آج کل اس میں بوریاں رکھی ہے ریت کی کہ یہ کتنا وزن اٹھا سکتے ہیں. اور جو وہاں پر ابھی رپورٹ ہے کہ یہ لوگ زیادہ اس میں آ جاتے ہیں تو پھر اس میں آگ لگ جاتی ہے. اس کا تو کوئی پوچھنے والا نہیں. جتنے بھی بڑے بڑے اسکینڈل میں نے وہاں پر، ہمارے وہاں پر جو وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ 5 کروڑ اور 1 ارب درخت لگائے، اس کے لیے میں نے اسمبلی میں آواز اٹھائی. اپوزیشن سب جماعتوں کی ایک کمیٹی بنائی، ہر ایک جماعت سے میں نے لوگ لیے، اور جب ہم جس دن جا رہے تھے حکومت نے انکار کیا، اور وہاں پر جب ہم گئے تو 4000 2000 کنال کی زمین میں ایک بھی درخت نہیں ہے. اور آپ کی میڈیا کی ٹیمیں میرے ساتھ تھی، ابھی تک اس پہ بھی کچھ اس طرح بات نہیں ہے کہ یہ تو کوئی اتنی زیادہ کرپشن ہوئی ہے. تو لہذا آج جو ہم مولانا صاحب فضل الرحمان صاحب جو پی ڈی ایم کے صدر ہیں، اس نے بھی اس پہ سب سیاسی لیڈر کے ساتھ مشاورت بھی کی کہ یہ واقعہ جو ہے اس کو ہم اس طرح نہیں چھوڑ سکتے. اس پہ ابھی 25 تاریخ کو کوئٹہ میں جلسہ ہے، اس پہ بھی بات کریں گے، اور ہم سوچیں گے کہ احتجاج کا کون سا ذریعہ ہم استعمال کریں، اور اس مسئلے کو ابھی دبانا نہیں ہے. لیکن آپ کے دوستوں سے بھی میری گزارش ہے، آپ ہمارے سارے بڑے پیارے دوست ہیں، آپ بھی اپنی برادری میں ان لوگوں کو تھوڑا سا اس کے گھر میں جا کر منت سماجت کریں. ان حالات میں آپ کس طرح اس گورنمنٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ خدا را یہ صحافت پہ بھی میرے خیال میں ایک ایسا دبا ہے جو آپ کے برادری کو بھی نہیں چھوڑ رہے، وہاں پر پولیس کو بھی نہیں چھوڑ رہے، اور وزراء جو ہے وہ ہماری فوج کو اس طرح بدنام کر رہے ہیں کہ کبھی میڈیا میں ٹاک شو پہ بھوت لا کر بیٹھ کے کہ یہ فیصلے ہم نے اس کے ذریعے کیے، اور اس پہ بھی کوئی نوٹس نہیں لیا جاتا. اور کچھ جو ہے کہتے ہیں کہ مجھے یہ معلوم ہے، جس طرح ہماری پارٹی کے بارے میں بھی ایک وزیر صاحب نے کہا، اور جب ہمارے وہ انفارمیشن اطلاعات کے سیکٹری نے اس کو کہا کہ میں آپ کا چیلنج قبول کرتا ہوں چینل پہ آ جائے، تو اس کے بعد پھر وہ خاموش بھی ہو گیا، بیٹھ گیا. خدا را اس ملک کے اداروں کو اس طرح آپ ان کاموں میں ملاوث نہ کرے کہ اس کا تقدس پامال. سر کوئی بھی سیاسی جماعت، ایک منٹ، کوئی بھی سیاسی جماعت کسی بھی ادارے کی بے عزتی کا نہیں سوچ سکتا، لیکن عزت نفس جو ہے وہ سب سے پہلے میرا بھی، مجھے اتنا عزیز ہے کسی دوسرے کو، وہ بھی سب کا خیال رکھے. اور انشاءاللہ ابھی پی ڈی ایم کے جو پروگرام ہے، یہ تو صرف 2 جلسے ہوئے ہیں، صحیح، اور 2 جلسوں نے اس کو اتنی بکلاہٹ دی ہے، اتنی بے چینی دی ہے کہ وہ سب کچھ بھول کے، تو انشاءاللہ ابھی دوبارہ ہم آپ ہمارے ساتھ ہوں گے، اور ہم ان لوگوں کے ساتھ ہیں جو یہاں پر گورنمنٹ ملاوے زمین اسلام آباد میں آئے ہیں، اور یہاں پر ہماری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، اور کوئی اس کے پاس جانے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. تو آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور چونکہ عبدالغفور حیدری صاحب 2 منٹ میں آپ کے سامنے بات کریں. سر بس کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بس کرتے ہیں، آپ کو شکریہ. گھنٹہ ہو ہمارے
अब्बासी साहब ने फरमाया कि वज़ीर आज़म कुछ नहीं कर रहे, वज़ीर आज़म बहुत कुछ कर रहा है। वज़ीर आज़म ने दाढ़ी पे हाथ रखा और कहा कि मैं मियाँ नवाज शरीफ साहब को ज़रूर ले आऊँगा और ज़रूर जेल में डालूँगा। ये नहीं कर रहा। इसी तरह उन्होंने पैगाम दिया जेलर को कि शहबाज शरीफ साहब से चारपाई भी छीने, बिस्तर भी छीने, फर्श पे उसको लिटाए। ये कोई छोटा काम है? इसी तरह वज़ीर आज़म साहब ने हुक्म दिया चादर और चार दीवारी तक़द्दुस को पामाल किया गया। बीबी मरियम नवाज जो है मुस्लिम लीग के मकाम सदर है इस वक्त, वो अपने शौहर के साथ अपने कमरे में और उस कमरे का ताला तोड़ के चादर और चार दीवारी का तक़द्दुस पामाल किया गया। ये कोई छोटा काम है? बड़े बड़े काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ा काम इन्होंने अब ये किया है कि दोनों ऐवान फ़आल हैं, मौजूद हैं, उसके बावजूद एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए सिंध के जजीरे, बलूचिस्तान के जजीरे, कोस्टल हाईवे और इन तमाम जज़ायर जो पाकिस्तानी हुदूद में पानी है, उनके तमाम मछली और सब पे सबको जो है ना उन्होंने गस्ब किया और इंफाक के हवाले किया। तो ये कोई छोटा काम उन्होंने किया है। लेकिन मैं एक बात आपके तवज्जुह से, पीडीएम के कायदीन के तवज्जुह से करना चाहता हूँ कि बलूचिस्तान के जजीरे और सिंध के जजीरे इंशाअल्लाह विफाक को हजम नहीं होंगे। और यही बुनियाद है नफरतों का जो इमरान खान डाल रहे हैं। लिहाजा इसकी हम मुज़ाहमत करेंगे, पार्लियामेंट में भी करेंगे, फील्ड में भी करेंगे, पीडीएम के जलसों में भी करेंगे। लेकिन हम समझते हैं कि ये इक़दाम 73 के आइन 18वीं तरमीम के खिलाफ है। लिहाजा इसको हम नहीं मानते। राय साहब, ये बताइएगा कि सेक्टर कमांडर की बातें चल रही है। सेक्टर कमांडर किस इदारे से थे? रेंजर से थे? किस इदारे से? थोड़ा बता करें। देखें भाई, मैं इदारों के ऊपर सवाल उठ रहे हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जिस वक्त इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर दी है, तो हमें इंतज़ार करना है उसकी आउटकम का। जब वो आउटकम आएगी, जब सबके सामने तफसीलात आएंगी, फिर इस पर बात करेंगे। राजा साहब ये बताइएगा कि 25 तारीख को क्या बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो जलसे में पीडीएम के शिरकत कर रहे हैं या नहीं? देखिए जी, उनकी भरपूर कोशिश होगी तो वो ज़रूर आए उस पर। तो आपको ये खबर शायद मिली होगी कि बल्तिस्तान जा रहे हैं। वो इनका प्रोग्राम जनाब चेयरमैन साहब का बहुत दिनों से ये तश्कील पा चुका था और वहाँ पार्टी ने उसका अरेंजमेंट किया हुआ था। लेकिन उसके बावजूद हम कोशिश कर रहे हैं कि वो बार वक्त जो है वो कोयटा पहुँचे। और अगर किसी वजह से नहीं पहुँचते तो फिर दूसरे तरीके भी हैं कि वीडियो लिंक के जरिए या किसी तरह से उनकी तकरीर वहाँ हो। सर, ये बताइएगा कि एक तौसर दिया जा रहा है वफाकी वज़रा की तरफ से कि शायद पीडीएम तकसीम हो गई है, तो इस तरह की बातें कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब को वहाँ पे खिताब नहीं करने दिया कराची में, बिलावल साहब कोयटा नहीं जा रहे, उस तरह की बातों को वो उछाल रहे, फैला रहे और पीडीएम के हर सवाल का अपना आपको तो मैं ये गुजारिश करूँगा कि जो उनकी वज़रा है या उनके स्पोक्समैन है या तर्जुमान है, अगर तो आप उनकी बातों को सीरियस लेते हैं, संजीदा लेते हैं, तो फिर मैं समझता हूँ कि ये तो एक और जो है वो दुख की बात है हमारे लिए। भाई साहब, आप दोनों साबिक वज़ीर आज़म रहे हैं, आपके ख्याल में इंक्वायरी तो होगी, लेकिन ये ऑफेंस जो हुआ है आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक, इसकी सज़ा क्या है? सिंध के IG को जो ले जाए। देखिए, मैं आपको बताऊं कि जो भी सज़ा होती है वो इन्वेस्टिगेशन के बाद, वो इंक्वायरी के बाद आती है। जब हक़ाइक़ सामने आती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होती है, उसके बाद सज़ा की बात होती है। आपने कहा कि पीडीएम मैं बात देखें, बात ये है कि वफाक ने सूबे पे हमला किया। ये बात मामूली नहीं है। अगर वहाँ पर सूबे की पुलिस फोर्स गोली चला देती रेंजर्स पर, कौन जिम्मेदार है? किसने हुक्म दिया रेंजर्स को कि अगवा किया जाए IG पुलिस को? ये मामूली बातें नहीं है, ये आइन शिकनी है। इसमें ये बात याद रखिए। मैं ये बात ज़रूर ऐड करूँगा, ये इतनी संगीन आइन शिकनी है कि अगर सुप्रीम कोर्ट इसका सुओ मोटो नोटिस ले तो इस जुर्म के ऊपर वफाकी हुकूमत बरतरफ हो सकती है। पीडीएम ने कहा कि हम सारे एक ही मौक़िफ़ है। जो आप बात कर रहे हैं, आप खराज तहसीन पेश कर रहे हैं आर्मी चीफ को। कल उन्होंने जो नोटिस दिया, क्या मेरे साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी साहब भी ये कर रहे हैं, खराज तहसीन पेश करके, नाम लेके?
शायद खकान अब्बासी ने कहा कि आज सियासत में धकेला जा रहा है वज़ीर आज़म की तरफ से, तो क्या मुस्लिम लीग नून के जो कायद मियां नवाज शरीफ ने कहा था कि पहले से वो सियासत में है, उस पर इनकी क्या राय है? ये राय के इजहार का वक्त नहीं है। बात बड़ी सीधी है कि जो दो वफाकी इदारे हैं जो इसमें मुलव्वस हुए हैं IG को अगवा करने में, दोनों प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करते हैं। ये बात दुरुस्त है। अब प्राइम मिनिस्टर साहब तो बोलते नहीं है। बिलावल साहब ने मजबूर होकर उन्होंने कहा जी फिर ये इसमें फौज की भी रोल होता है, तो आर्मी चीफ से उन्होंने दरख्वास्त की इस मामले को तय करें। तो अब आर्मी चीफ को भी सियासत के अंदर घसीटा गया। काम वफाकी हुकूमत का है, अब तफ्तीश आर्मी चीफ कर रहे हैं। ये बड़े अजीब मामला है। ये बताइएगा कि आप सब साहिबान को इस बात पर यकीन है कि इस मामले में आर्मी चीफ जो है वो इंसाफ कायम करेंगे? बिल्कुल, हमें अपने तमाम इदारों के ऊपर जो है वो भरोसा है कि जब एक इन्वेस्टिगेशन होगी तो सारे मामला सामने आएंगे। 100%। हमारा ये ख्याल है कि सेनेट को भी इस मामले को लेना चाहिए। स्पेशल कमेटी सेनेट की बननी चाहिए। सेनेट का काम होता है वफाक और सूबों के जो ताल्लुकात हैं उनके बारे में उसका एहतमाम करना और उस पर नज़र रखना। ये अहम बात है जी। ये बड़ा जरूरी है कि सेनेट इसका नोटिस